नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। हारमनी टीवी देखने वाले मेरे सारे व्यूअर्स को मिताली जानी की तरफ से हैप्पी प्रॉस्परस न्यू ईयर बाय हिंदू कैलेंडर एंड हैप्पी दिवाली। बट ऑफ कोर्स बंदी छोड़ दिवस दियाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। आज के इस एपिसोड में हमारे पास है इस प्यारे से फेस्टिव सीजन को लेकर कुछ बेहतरीन कवरेज और उसके साथ साथ पंजाबी सॉन्ग ऑफ द वीक। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की बंदी छोड़ दिवस के सेलिब्रेशंस के साथ। देश विदेश विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया हेठ बंदी दौड़ शिफ्ट का यह पवित्र दिहाड़ा देख रही साध संगत जीओ। अज सारे असी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा एडमंटन विखे बंदी छोड़ दिवस मनाउण लई इकत्तर होए आ। समुचे सिख जगत नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज सवेर तो ही बंदी छोड़ दिवस के संबंध में समागम गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा एडमंटन विखे चल रहे हैं। कनेडा विखे ये समागमां विच भाई धर्मवीर सिंह जी सियाल का जथा, भाई दिलबाग सिंह जी का लुधियाने वालियां का जथा अते भाई सुखविंदर सिंह जी उगे कथावाचक ने। उन्होंने कथा राही संगतां नूं सवेर दे निहाल कर रहे हैं। जिथे सवेर तो संगतां इस पवित्र दिहाड़े ते गुरु साहब नूं नमस्कार करन आईयां ने, उत्थे संगतां ने बड़ी मात्रा में आके बड़े पद्धर ते आके जिथे गुरु नूं नमस्कार किया उत्थे गुरु घर की सेवा भी, चाहे लंगरां की सेवा, देग ते सेवा, वख-वख तरीके की जिथे जिथे किसी ने सेवा की है। संगतां दा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बहुत धन्यवाद। भाई रणजीत सिंह खैरा जो हमेशा ही गुरु घर में कोई भी समागम होवे वीडियो की फ्री सेवा करते हैं, उन्हों का गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों धन्यवाद। समुचे सिख जगत नूं बंदी छोड़ दिवस की इस पवित्र त्यौहार ते इस पवित्र दिवस से समुची गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों लख लख बधाई होवे अते अकाल पुरख अगे अरदास है आने वाला साल जिहड़ा बंदी छोड़ दिवस है खालसा पंथ लई चढ़दी कला वाला होवे। खालसा पंथ वड्डियां मल्लां मारे अते इसे तरह संगत इकट्ठी होकर गुरु के चरणों में गुरु के दिवस मनाउण दा सानू सब नूं बलोतम शक्ति बख्शिओ। होइयां भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। The fireworks outside, everybody's so excited. Everybody looks fantastic. And I really just wanted to come and bring greetings and say I'm so happy to celebrate with you. And thank you so much for sharing your traditions and culture and making the community that much stronger. It's fantastic. So thank you. And if you do ever need anything, my office is always available to you. Thank you again. Happy Diwali. Thank you, Christina. So now I request to Mr. Lord Bradley, our respected MLA from LFC. He is वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। Ladies and gentlemen, I want to thank you so much for the opportunity to address you this evening. And like MLA Gray, I'd like to wish you all a happy Diwali and also Bandi Chhod Divas. I know that tomorrow is the anniversary of a historic date. And you know that we can never forget our history. We can never forget our history because our history helps us know where we are going. And I want to say how proud I am to be connected to this community, to be here for when you need me the most. Like Christina, I want to offer myself. You know that I'm always at your service. Whenever you need me, feel free to contact my office so that we can continue building and strengthening the community, not only for ourselves, but for many generations to come. So again, ladies and gentlemen, thank you for the opportunity. Happy Diwali and Bandi Chhod Divas. Vaheguru Ji Ki Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Christina. Thank you, Lord Bradley. You always welcome. You're always welcome here, and you are part of our community. You always help everybody. So we respect you a lot. So on सारे
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਛੱਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਚਾਬੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾੜੀ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ। ਦੇਰ ਰੋਗਤਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਗੱਲਾਂ ਵੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਵਣ ਸੁਣਾ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ, ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਾ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਧੀ ਰਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਰੱਟ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਧੀ ਰਤੇ ਆ। ਦਰਗਾਹ ਪਾਈ ਹੈ ਖਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਤੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਦਰਗਾਹ ਪਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਧੀ ਚੌਦ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲਾ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਚਲ ਚੌੜ ਛਤੂ शाह पातशाह निहत चौद सत निहत चौद सत निहत चौद सत Keep on the
At Days Inns, our promise is as sure as the sun. Do more of it when you stay at Days Inn. Comfy rooms, free Wi-Fi, free healthy options breakfast. Business or pleasure, Days Inn is the best value under the sun. Plus, make your trip even more valuable by earning Wyndham Rewards points. We offer the lowest rates guaranteed. So book your getaway right away. Here comes the sunshine. ड्राइवर्स ट्रेनिंग, NSC ऑडिट, मिनिस्ट्री इंटरवेंशन, कोई भी चिट्ठी पत्र मिनिस्ट्री तो आया होवे, जहाँ फ्यूल टैक्स, प्रोरेट लॉग बुक ऑडिटिंग, स्टाफ ट्रेनिंग, कैनेडियन या US अथॉरिटी अपनी कंपनी वास्ते लैंड ले साडे नाल संपर्क करो। साडे फोन नंबर्स हम एडमिंटन 7806285780, कैलगरी 403-668-7171, टोरंटो 905-486-1666. Your safety is our concern. Compliance mentors. Hi, I'm Navjeen Kabarwal from Optimum Immigration. I'm a licensed immigration consultant. If you have any questions related to any immigration or sponsorship or work permits, you can call me at 780-399-5127, 780-490-6090, 780-468-3331. You can also email me at navjeen@optimumgroup.info. Enjoy luxury living at Royal Oaks by Cancom Developments. Location and complete satisfaction draw our clients to Royal Oaks. We offer fully serviced lots in a broad variety of sizes. Build your dream with us. We are 5 minutes south of Edmonton and 10 minutes from the International Airport. Let your lifetime investment be Royal Oaks. Wondering what's happening in Western Canada? We are presenting Cultural Tadka in Hindi, Punjabi and English. We are coming every Saturday with news, views, entertainment and community coverage. Don't forget to watch us every Saturday morning. Harmony TV, celebrating togetherness. वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हार्मनी टीवी। हमारे पास है नेक्स्ट सेगमेंट में राधा माधव मंदिर, इस्कॉन मंदिर, जो हर साल लेकर आता है दिवाली के सेलिब्रेशन के ऊपर गोवर्धन महोत्सव। इस महोत्सव का क्या है कारण और इस महोत्सव के क्या है अलग अलग रूप? नमस्कार, आप है हार्मनी टीवी पर मिताली के साथ। फिलहाल हम हैं हरे कृष्णा टेम्पल में, जो कि स्थित है अहमदाबाद से थोड़े ही किलोमीटर दूर। लेकिन आज यहाँ दिवाली का जो प्यारा सा पर्व है उसका सेलिब्रेशन कुछ अलग तरीके से हो रहा है। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहती हूँ विरूपाक्ष दास जी, जो इस टेम्पल के प्रभु जी हैं। नमस्कार प्रभु जी, आज के इस प्यारे से पर्व पर हमारे इस मंदिर में जो भी कुछ सेलिब्रेशन है उसके बारे में हमें समक्ष बताइए। हरे कृष्णा। आज हम इस मंदिर में गोवर्धन पूजा मना रहे हैं और ये दिवाली के दूसरे दिन मतलब प्रतिपद के दिन आता है ये उत्सव। सामान्य तौर पर गुजरात में इसे नववर्ष के रूप में मनाया जाता है और वैष्णव कल्चर के अनुसार और श्रीमद् भागवतम के अनुसार ये दिन गोवर्धन पूजा का दिन है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गिरिराज गोवर्धन को अपने हाथ में उठाया था। ये संक्षिप्त में इसकी लीला भी सुनेंगे हम।
गिरिराज गोवर्धन जो हैं वो द्रोणगिरी पर्वत के पुत्र हैं। द्रोणगिरी पर्वत जो है वो पर्वत है जिनको हनुमान जी लंका लेकर गए थे लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए। सो उनके पुत्र हैं ये गिरिराज गोवर्धन। एक बार पुलस्त्य ऋषि जो रावण के दादाजी हैं वो कहते हैं विहार कर रहे थे, तब उन्होंने ये सुंदर गोवर्धन पर्वत को हिमालय में देखा तो उनकी इच्छा हुई कि मैं इसे अपनी नगरी काशी में लेकर जाऊं। सो उन्होंने द्रोणगिरी से बहुत निवेदन किया कि मुझे आपका पुत्र दे दीजिए ताकि मैं इनको काशी में लेकर जाऊं अपनी नगरी में और वहां इनको विराज करके आराम से अपनी तपस्या करूं। सो द्रोणगिरी की इच्छा न होते हुए भी, गिरिराज गोवर्धन की इच्छा न होते हुए भी दोनों ने फिर भी पुलस्त्य ऋषि की बात मानी और गिरिराज गोवर्धन ने एक शर्त रखी। वो शर्त ये थी, मैं आपके साथ जाऊंगा लेकिन आप मुझे रास्ते में कहीं पे भी उतारेंगे नहीं। अगर आपने मुझे कहीं पे भी ज़मीन पर रख दिया तो मैं वहाँ से हिलूंगा नहीं। ठीक है। सो इस शर्त के साथ पुलस्त्य ऋषि माने, गिरिराज गोवर्धन और द्रोणगिरी भी माने और पुलस्त्य ऋषि उनको लेकर जाने लगे। सो जैसे जैसे वो काशी की तरफ बढ़ते गए वो वृंदावन की पावन भूमि से गुजरने लगे। तब गिरिराज गोवर्धन को लगा ये तो वृंदावन की दिव्य भूमि है, इससे अच्छा निवास स्थान तो कोई हो ही नहीं सकता जी। सो उन्होंने अपनी योगिक शक्ति से, अपनी दिव्य शक्ति से अपना वज़न बढ़ाया और पुलस्त्य ऋषि को जब वो भार सहन नहीं हुआ तो वो थक गए और उन्होंने विश्राम करने के लिए गिरिराज गोवर्धन को ब्रजभूमि में रखा। जब उनकी थकान मिटी और उन्होंने उनको दोबारा उठाना चाहा तो गिरिराज गोवर्धन नहीं माने और इससे कुपित होकर पुलस्त्य ऋषि ने उन्हें एक श्राप दिया। क्या श्राप दिया कि आपने मेरे साथ छल कपट किया है, अपना वज़न बढ़ाकर इस तरह आप यहाँ रुक गए, आप हर रोज़ एक मस्टर्ड सीड, राई के दाने जितना आप श्रिंक होंगे, छोटे होते जाएंगे। सो इस तरह से गिरिराज गोवर्धन जो है श्राप लेते हुए भी क्या कहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार भगवान की दिव्य लीलाओं का, बाल लीलाओं का रस आस्वादन करने के लिए ब्रजभूमि में रुक गए। तो आज का जो पर्व है उसकी सबसे बड़ी माहिती आपने दी कि कैसे ये पर्व, क्यों ये पर्व मनाया जा रहा है। ये पर्व तो मनाया जा रहा है इसलिए कि भगवान कृष्ण ने जब वृंदावन वासियों से कहा कि आप इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा कीजिए, तो ये समाचार सुनकर इंद्र बहुत क्रोधित हुए और इंद्र ने वृंदावन के ऊपर आंधी तूफान और बाढ़ से प्रहार कर दिया, भीषण वर्षा से प्रहार कर दिया। इससे सारे वृंदावन वासी जो हैं वो विचलित हो गए, क्योंकि उन्होंने भगवान के आदेश पर इंद्र की सेवा रोकी थी, इंद्र की पूजा रोकी थी। सो भगवान ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और इस दायित्व को पूरा करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए गिरिराज गोवर्धन को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर 7 दिनों तक उठाया और सारे ब्रजवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया। सो आज वो दिन है जिस दिन ये लीला हुई थी, गोवर्धन लीला जी। सो ये है गोवर्धन लीला का महत्व। आज के हमारे मंदिर में क्या सेलिब्रेशन है उसके बारे में थोड़ी सी हमें माहिती दीजिए। हाँ, सो आज मंदिर में गोवर्धन पूजा का उत्सव आयोजित किया जा रहा है और इसके अंतर्गत सबसे पहले हम यहाँ आप देख रहे हैं पालकी उत्सव, उसके साथ साथ हम गौ पूजा करेंगे। उसके बाद सब लोग इधर मंडप में आएंगे जहाँ पर हमने अन्नकूट और ये कहते हैं शुद्ध शाकाहारी केक से गिरिराज गोवर्धन के प्रतिमा स्वरूप को यहाँ पे बनाया है और गिरिराज गोवर्धन का आह्वान किया है, क्योंकि ये संभव नहीं कि विश्व भर में सब लोग हर गोवर्धन पूजा को वृंदावन जा सके। इसलिए सब भक्त, जितने भी वैष्णव भक्त हैं, वो सब अपने अपने निवास स्थान में, अपने अपने मंदिरों में गिरिराज गोवर्धन को वहाँ आमंत्रित करते हैं। अन्नकूट के रूप में उनकी आरती होती है, उनके लीला का वर्णन होता है और इसके बाद अन्नकूट का प्रसाद वितरण होता है सबके लिए। प्रभु जी, आज के दिन इतने सारे हमारे भक्त यहाँ आए हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे वैष्णव भक्त ही है। यहाँ मैं देख रही हूँ ढेर सारे भक्त ऐसे भी हैं जो भक्त यहाँ इस मंदिर को देखने के लिए ज़्यादा तो आए हैं, इस पर्व को देखने के लिए आए हैं। और हमारे बहुत सारे भक्त जो कि फ़िलहाल हारमोनी टीवी पर आपको, मुझे देख रहे हैं, इस लीला को देख रहे हैं, तो उनके लिए आपका मैसेज दीजिए। सबके लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज है और वो मैसेज ये है कि
ये जो महीना है ये दामोदर महीना है या कार्तिक महीना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समस्त वनस्पतियों में सबसे प्रिय उन्हें तुलसी है, समस्त तिथियों में उन्हें सबसे प्रिय एकादशी है और समस्त महीनों में उन्हें सबसे प्रिय ये दामोदर महीना है। इस महीने में कल के दिन मतलब अमावस्या के दिन, दिवाली के दिन भगवान श्री कृष्ण ने दामोदर लीला की थी। इस दामोदर लीला का एक बहुत विशेष संदेश है और वो संदेश ये है कि भगवान कृष्ण ये जाहिर करते हैं इस लीला से वो ना तो किसी योगी, ना किसी ज्ञानी, ना ही किसी तपस्वी के वश में आ सकते हैं, किंतु अगर कोई प्रेम से उन्हें अपने वश में करे तो वो उसके वश में आ जाते हैं। मतलब भगवान जो हैं वो अनंत हैं, उन्हें कोई कैप्चर नहीं कर सकता, लेकिन एक भक्त अपने प्रेम से भगवान को बांध सकता है। इस लीला से प्रेरणा लेते हुए, इसका संदेश लेते हुए हमें हमारा प्रेम भगवान के प्रति बढ़ाना है। चाहे हम कैसे भी हों, किसी परिस्थिति में हो, कहीं भी रहते हों, हमारा कैसा भी बैकग्राउंड हो, कैसा भी ब्रिंगिंग अप हो, हम बस भगवान के प्रति अपना प्रेम बढ़ाएं और हमें भगवान तक जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भगवान स्वयं अपनी तरफ आ जाएंगे। हरे कृष्ण। Immunocal is the best product to stay healthy. इम्यूनोकोल प्रोटीन कैंसर, शरीर में कहीं भी होने वाले दर्द और बैक्टीरिया का इलाज करता है। ये बेहतरीन हेल्दी प्रोटीन है। Immunocal's tremendous benefits will far outweigh the cost. 1-888-997-6759 पर आज ही फोन करें और घर लाएं परिवार की पूरी सेहत का फार्मूला। Why wait? Contact me now and enjoy your beautiful life. Love, dream, escape, cherish, enjoy with Century Travels. Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durable Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation.
call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabuiltwindows.com. At Maple Dental Clinic, we strive to create a comfortable environment for our patients. We work evening and weekend hours for your convenience. We do Invisalign braces, digital x-rays using modern state-of-the-art equipment. We direct bill insurances. Our staff speak English, Punjabi, Hindi and Urdu. Hi there, how are you today? At Maple Dental Clinic, how can I help you there? We are here to spread a smile, so please call us at 780-440-5001 to book an appointment today. So far, so good. कैसा रहा आपका ये साल? हमें बताना नहीं भूलिएगा. You can email us at info@harmonytv.ca. इस एपिसोड को दूसरी बार देख सकते हैं हार्मनी टीवी के यूट्यूब चैनल पर और हमारी वेबसाइट पर जाएं www.harmonytv.ca. तो मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे. तब तक खुश रखिए और खुश रहिए. Once again, Happy Diwali and prosperous Hindu New Year to all my viewers. Good day. ਦੇ ਫਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਫਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਫਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਨੀ ਘਰ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਬਿਲੋ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਥੇਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਨਾ ਬਣਦੀ ਗਰੌਸ ਨਹੀਂ ਬਿਲੋ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਥੇਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਨਾ ਬਣਦੀ ਗਰੌਸ ਨਹੀਂ ਬਿਲੋ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਸੇਕ ਲਈ ਕਰਕੇ ਸਟਕੋ ਨੀ ਮਿਸਾਲ ਪਰ ਵੇਖ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਸੇਕ ਲਈ ਕਰਕੇ ਸਟਕੋ ਨੀ ਮਿਸਾਲ ਪਰ ਵੇਖ ਲਈ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੂੜਦੇ ਨੀ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੂੜਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੌਸ ਨੀ ਬਿਲੋ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਥੇਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਨਾ ਬਣਦੀ ਗਰੌਸ ਨੀ ਬਿਲੋ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਥੇਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਨਾ ਬਣਦੀ ਗਰੌਸ ਨਹੀਂ ਬਿਲੋ